ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کلین لاہور مشن کے تحت شہر میں صفائی اور میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا علی الصبح تحصیل واگا پہنچے، جہاں انہوں نے صفائی، سیوریج اور نکاسی آب سمیت مختلف انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، چیف آفیسر MCL، واسا حکام سمیت متعلقہ افسران موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر واگا محمد عامر بٹ نے میونسپل سروسز اور صفائی کے انتظامات پر DC لاہور کو بریفنگ دی۔ DC لاہور نے LWMC کو ہدایت دی کہ معمولات زندگی کے آغاز سے پہلے صفائی کے انتظامات مکمل کیے جائیں اور ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ واسا کو ہدایت کی گئی کہ مین ہولز، سیوریج اور نکاسی آب کے مسائل پر خصوصی توجہ دی جائے اور کھلے مین ہولز کی فوری نشاندہی کر کے انہیں کور کرنے کا عمل تیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کلین لاہور مشن کے تحت شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ بچوں کو خسرہ، روبیلا اور دیگر بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکوں کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں CDF اسپتال میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز جبران خان کی اس رپورٹ میں۔ CDF ہاسپٹل میں 17 نومبر سے 29 نومبر تک جاری رہنے والی خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں کی مہم کے سلسلے میں CDF ہاسپٹل ڈاکٹر مینا کماری کی سربراہی میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی واک میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور محکمہ صحت کے ملازمین نے شرکت کی۔ ڈاکٹر مینا کماری کا کہنا تھا کہ والدین اپنی 6 ماہ سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو اس مہم میں ٹیکے ضرور لگوائیں۔ میں ڈاکٹر مینا MS CDF ہاسپٹل 17 نومبر سے لے کے 29 نومبر تک خسرہ روبیلا کی مہم اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ میں حیدرآباد کے تمام والدین کو گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو 6 ماہ سے لے کے 5 سال تک ہیں ان کو خسرہ اور روبے کے ٹیکے لگائیں، اور جو پیدائش سے لے کے 5 سال تک 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں، تاکہ ہم ان تمام موذی مرضوں سے ہمارا چھٹکارا ہو سکے۔ اور میں آپ سب کی تعاون کی طلبگار ہوں۔ ہمارے فکس پوائنٹ بھی ہیں، اور جو ٹیمیں ہماری آئیں گی آپ کے گھروں تک، ان کے ساتھ آپ اچھا ان کو ویلکم کریں، اپنے بچوں کو یہ ٹیکے ضرور لگوائیں۔ 17 سے 29 نومبر تک جاری رہنے والی خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ ساتھ پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ جبران خان، 5 نیوز، حیدرآباد۔ ملتان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ CPO ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر SP صدر ڈویژن ختیجہ عمر نے تھانہ سٹی شجاباد میں کھلی کچہری منعقد کی۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنے مسائل اور شکایت پیش کی، جن پر SP صدر نے موقع پر ہی متعلقہ افسران کو فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ تقریب میں DSP سرکل ضیاء اللہ خان، SHOs اور تفتیشی افسران بھی موجود تھے۔ SP ختیجہ عمر کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا اور ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ میرپور خاص میں گنے کے رس سے مختلف اقسام اور مختلف قسم کے گڑ بنانے کے لیے جگہ جگہ بھٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز شہزاد خان سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، میرپور خاص میں سرد ہوائیں چلنے کے فوری بعد گنے سے تیار کرنے والے مختلف گڑ، اس کے علاوہ مختلف سوغات بنانے کے لیے بھٹیاں قائم کر دی گئی ہے۔ میں اس ٹائم میں موجود ہوں ایک بھٹی پر، وہاں پر دکاندار بھی موجود ہیں۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس سرد موسم کے اندر یہ جو آپ گنے سے گڑ اور اس کے علاوہ دیگر جو مصنوعات بنا رہے ہیں، اس کے مختلف کوالٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ سادہ گڑ بنتا ہے، اس کے علاوہ بادام، پستہ، اوریجنل دیسی گھی میں گاجر میں گڑ بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الگ کوالٹی ہوتی ہے، بادام، پستہ، اخروٹ، کاجو وغیرہ دیسی گھی ڈال کر گڑ بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گڑ کی شکر ہوتی ہے، براؤن شوگر جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گڑ کی لکوڈ بنایا جاتا ہے، شہد کی طرح لکوڈ ہوتا ہے گڑ کی۔ اس کے علاوہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اپنا ڈرائی فروٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں، اپنی فرمائش کے حساب سے اپنا گڑ بنوانا چاہیں وہ بھی بنا کے دیتے ہیں۔ مختلف کوالٹی کے یہاں پر گڑ بنائے جاتے ہیں جو یہاں پر موجود ہے، اور گراہک جو ہے کہ یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنے پسند کا جو کہ گڑ ہے، اس کے علاوہ گنے سے جو دیگر آئٹم بنائے جا رہے ہیں وہ بھی یہاں پر خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ میرپور خاص شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں کے اندر گنے سے گڑ، اس کے علاوہ دیگر کوالٹی کے حوالے سے آئٹم جو بنانے کی بھٹیاں قائم کر دی جاتی ہے۔ جی خیرپور کی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں طلباء و طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے فوٹوگرافی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلباء نے اپنی فنکارانہ مہارت، مشاہداتی صلاحیت اور بصری کہانی گوئی کے ذریعے مختلف موضوعات کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ خیرپور سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد عمران مانگٹ۔
نمائش میں طلبہ کی جانب سے بنائی گئی تصاویر میں معاشرے کے رنگ، ثقافت، روایات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ کیمرے کی آنکھ سے کہی گئی ان کہانیوں نے حاضرین کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ طلبہ کی مہارت اور سوچ کی پختگی بھی سامنے آئی۔ بچوں کا پریکٹیکل ورک ہے اور وہ پریکٹیکل ورک آپ دیکھیں کہ آپ اسلام آباد چلے جائیں یا آپ استنبول چلے جائیں یا آپ جرمنی کے برلن میں چلے جائیں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں جو ایگزیبیشنز ہوتے ہیں یہ ایگزیبیشن کسی بھی حوالے سے کم نہیں ہے اور یہ ہمارے بچوں کی محنت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری انڈیجینئس جو خاص طور پر پلانٹس ہیں ان پودوں کو بھی یہ اپنی پکچرائزیشن میں لے کر آ رہے ہیں۔ جو ہمارے پیٹس ہیں جو جاندار ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بلیوں کی، بٹر فلائز کی، آپ دیکھیں کہ اس میں شہد کی مکھیوں کی، آپ دیکھیں ہسٹوریکل آرکیالوجیکل سائٹس کی۔ نمائش میں شریک طلباء نے فوٹوگرافی کے ذریعے انسانی احساسات، معاشرتی روایات، قدرتی حسن اور روزمرہ زندگی سے جڑے موضوعات کو کہانی کی صورت میں پیش کیا۔ یہ جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے حساب سے ہے، جیسے لڑکیوں پہ ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، ان کے گھر میں وہ بول نہیں پاتی ہے، اس کے لیے اگر کوئی ایکشن لیتا ہے تو اگنور کیا جاتا ہے۔ اور بیسیکلی اس میں کیا تھا کہ موہن جو تھا نا، تو یہ سب سے منفرد مجھے نظر آتا ہے، تو مجھے منفرد دکھانا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے کیپچر کیا۔ تو یہ جو ساری کی ساری تصویریں جو ہم نے اس نمائش میں لگائی ہے، فوٹوگرافی نمائش میں، وہ سارے یہ بچوں کی جو محنت ہے جنہوں نے اس معاشرے میں مختلف اقسام کی جو تصویریں ہیں وہ کیپچر کی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ان اسٹوڈنٹ کو اگر مواقع میسر کیے جائیں تو نہ صرف یونیورسٹیز میں بلکہ ملک بھر کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران مانگڑ، وائے نیوز، خیرپور۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں میرپور خاص میں رکن صوبائی اسمبلی پارلیمانی سیکرٹری برائے منصوبہ بندی اور ترقی اور سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے میئر میرپور خاص عبداللہ غوری کے ہمراہ گاؤں صحبت لغاری یونین کونسل مکھن سمو میں منعقدہ سندھ رورل اسپورٹس آرگنائزیشن کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں دیہی خواتین اور مقامی تاجروں سے ملاقات کی گئی، جبکہ خواتین کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض کے چیک بھی تقسیم کیے گئے۔ سعدیہ جاوید کا کہنا تھا کہ سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے ذریعے غربت میں کمی حکومت سندھ کی بڑی کامیابی ہے، جبکہ میئر میرپور خاص نے اسے کمزور طبقوں کی معاشی مضبوطی کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ تقریب میں میئر میرپور خاص عبداللہ غوری بھی شریک ہوئے، جن کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کا یہ پروگرام کمزور طبقوں کی سماجی اور معاشی بہتری کے لیے انقلابی قدم ہے۔ حیدرآباد میں بم پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں ہونے والے دھماکے کے سانحے نے 10 خاندانوں کے گھر اجاڑ دیے۔ دھماکے میں مرنے والے ایک نوجوان شیراز ولد ثناء اللہ کی ایک زوجہ اور 3 کم سن معصوم بچے ہیں جو اب یتیم ہو گئے۔ مزید دیکھتے ہیں حیدرآباد سے رضوان شیخ کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کے علاقے تھانہ 20 سیکشن کی حد گوٹھ میجر باکر یونٹ نمبر 10 لطیف آباد میں بم پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں خوفناک دھماکہ ہوا، جس کے سبب 12 افراد جھلس گئے، جنہیں سول ہسپتال حیدرآباد اور کچھ کو کراچی ہاسپٹل ریفر کیا گیا تھا، جن میں سے اب تک 10 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے اور 2 افراد زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس بم پٹاخے بنانے والی فیکٹری کے مالک کا نام اسد یوسفزئی اور اس کام میں اس کے 4 پارٹنر بھی شامل ہیں، جن کے خلاف سرکار کی مدیت میں FIR درج کی جا چکی ہے، تاحال گرفتاریاں ابھی مکمل نہیں ہو سکی۔ اس خوفناک سانحے نے اب تک 10 خاندانوں کے گھر اجاڑ دیے، جس میں سے ایک شیراز ولد ثناء اللہ نوجوان بھی جان کی بازی ہار گیا۔ مرنے والے نوجوان کے 3 کمسن معصوم بچے یتیم ہو گئے۔ شیراز کے بھائی نے 5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنا بڑا کام ہو رہا تھا، کوئی بھی نہیں پہنچا یہاں پر، کوئی نہ زخموں کی تاب لاتے ہوئے ہمارا بھائی چلا گیا ہاسپٹل میں، نہیں کوئی اس کی داد رسی کرنے والا نہیں تھا۔ یہ بچے نے یتیم تو ہو گئے، اس کے بچے، یہ بچی ہے چھوٹی، اس کی 2 سال کی بھی نہیں ہے، ابھی یتیم ہو گئی یہ بچی۔ مزید شیراز کے بھائی کا کہنا تھا کہ فیکٹری میں کوئی احتیاطی آلات موجود نہ تھے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ 100 پیس کا تو جو ہے نا خیال رکھا جاتا، کوئی کٹ ویٹ کے کم سے کم کوئی بندہ ایسا انجرڈ تو نہ ہو کہ جو زندگی سے ہی جو ہے نا مطلب چلے جائے، لیکن اگر ایسا ہوگا تو نقصان بھی ہوگا، لیکن کم سے کم نقصان ہو، مطلب اتنا تو جو ہے نا مطلب کرنا چاہیے نا۔ جب لائسنس دے رہے ہیں، اگر لائسنس تھا اس کے پاس تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے اندر کچھ اصول بھی ہوں گے، کچھ چیزیں بھی ہوں گی، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔
सानिया पेश आने के बाद इंतजामिया और इदारे नींद से जागे और हरकत में आए और आतिशबाजी से मुतल्लिक तमाम तर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। जारी करदा लाइसेंस के लिए महकमा दाखिला की मशरूत और वाज़े करदा SOP असर नो जायजा लेने का फैसला, जिसमें 6 रुकनी कमेटी शामिल होगी। पर सवाल ये बनता है कि फैक्ट्री कैसे कायम हुई, इंतजामिया पुलिस सब कैसे लाइम थे जो इतनी बड़ी नाअहली ने 10 खानदानों के हंसते खेलते घर उजाड़ दिए। और अब देखना यह है कि इस वाक़े की शफाफ इंक्वायरी होगी और तमाम तर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर कुछ अरसे बाद पाबंदियां और कार्रवाइयां रद्दी की टोकरी की नजर होगी। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ रिजवान शेख, 5 न्यूज़ हैदराबाद। हाफिजाबाद में पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिसके दौरान मुख्तलिफ मुकामात में मतलूब मुतअद्दिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयाँ ज़िले के मुख्तलिफ थानों की हदूद, थाने सिटी हाफिजाबाद, सदर पिंडी भटियाँ, जलालपुर भटियाँ में की गईं। ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 27 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, जबकि इनके कब्जे से असलहा और मुनशियात भी बरामद की गईं। हाफिजाबाद पुलिस का कहना है कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पुलिस के मुताबिक तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए, जबकि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। सिंध बार कौंसिल के मरकजी ऐलान पर दादू में वकला की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट किया गया। वकला ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को काला कानून और आज़ाद अदलिया पर हमला करार दे दिया। मजीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुश की इस रिपोर्ट में। वक्त हुकूमत की जानिब से वफाकी आइनी अदालतों के क़याम के लिए 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुल्क भर की तरह दादू में भी वकला बरादरी की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का मुकम्मल बाइकआउट किया गया है। आज और कल हमारी 2 दिन की स्ट्राइक है और उसके साथ एडिशनली 26 और 27 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ख़ास तौर पर जो वफाकी आइनी अदालतों का क़याम किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को के अख्तियारात को कम कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को बाउंड किया गया है कि वो सिर्फ एपिलेट जुरिस्डिक्शन और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ही केसेस सुने, वरना जो फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स और मिसिंग पर्सनस की पटिशन्स वगैरह होती थी, रिट पटिशन सारी वो सुप्रीम कोर्ट को मना किया गया है। तो ये काला कानून हम समझते हैं ये आज़ाद अदलिया पर वार है और हम लीगल फटर्निटी इस अपने पॉइंट पर सब लोग मुत्तफ़िका तौर पर हम एहतजाज कर रहे हैं और हमारा ये एहतजाज है कि 26 और 27 अमेंडमेंट्स को फिल फॉर वापस लिया जाए। हम चाहते हैं कि ये जो अदलिया के को जो 2 टुकड़े किया गया है उसको ख़त्म किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम या 27वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए, जो 73 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया उसको बहाल किया जाए। हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत में से कभी नहीं होता था जो पाकिस्तान में इस बार हुआ है। मकामी कोर्ट मेहर जोही और तहसील खैरपुर नाथन शाह में भी अदालतों में वकला की जानिब से बाइकाट की वजह से जजेस ने अहम समाअत मुलतवी कर दी और साहिलीन को परेशानी का सामना रहा। अल्लाह बख्श, नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। नवाबशाह में कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न शाहमीर खान भुट्टो ने तारीख़ी विरसे के जारी खुदाई मंसूबे और म्यूज़ियम का तफसीली दौरा किया। फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा की टीम ने इन्हें खुदाई के मराहिल, दरियाफ्त शुदा नवादरात और कदीम तहजीब के अहम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने कहा कि चान्हो जोड़ो सिंध की कदीम और शानदार तहजीब का अहम हिस्सा हैं, जिसके हिफाजत हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि मुकाम की सिक्योरिटी, विजिटर्स मैनेजमेंट और म्यूज़ियम की बेहतरी के लिए जामे मनसूबा तैयार किया जाए। कमिश्नर ने म्यूज़ियम में रखे गए कदीम बर्तनों, मिट्टी के मुजस्मों और दीगर नवादरात में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और इस विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने पर जोर दिया। कसूर ट्रैफिक पुलिस की गफलत और लापरवाही से शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बन गए, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। दूसरी जानिब मेन शाहराह पर हैवी ट्रैफिक की ओवरलोडिंग हादसात का सबब बनने लगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ गुलाम दस्तगीर से, जो स्टील पार्क चौक पर शहरी के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम। जी बिल्कुल, कसूर में अगर ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए तो जगह जगह पर रिक्शा माफिया ने जो है स्टैंड बना रखे हैं। मैं इस वक्त स्टील पार्क चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में भी यहाँ पर दाएं बाएं रक्षा ही रक्षा है और दीगर जो है माफिया ने जो है यहाँ पर आरती स्टैंड बना रखे हैं, जिससे शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानब अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो वो भी जो है हर पोश के मदे लेने में मसरूफ है। निज़ाम जो है यहाँ पर ट्रैफिक का अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही दरमरम है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगे सर ट्रैफिक के हवाले से और डीपी
कसूर से क्या इल्तमास करते हैं? जी देखें सर, इसमें तो कोई बात ढुकी छपी नहीं है, आप सबके सामने है कि हर तरफ कसूर शहर में जहां मर्जी आप चले जाएं, वहां से ये रक्षा ड्राइवर ने भरमार डाली हुई है, हर तरफ रश ही रश है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से हमारे ट्रैफिक जवान कुछ ऐसे हैं कि वो जहां आप देखेंगे गप्पे मारते हुए आपको नजर आएंगे। ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से सर अंजाम दें, लेकिन कोई अपनी ड्यूटी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हर तरफ ऐसा फील होता है कि जैसे पूरे कसूर में सिर्फ रक्षा ही रक्षा है और कुछ है ही नहीं है। तो ये तो डीपीओ साहब को और डीएसपी ट्रैफिक को चाहिए कि वो अपने जवानों को थोड़ा अलर्ट करें ताकि कसूर का रश कम हो सके और कसूर के शहरी सुख का सांस ले सकें। जी, यहाँ पर आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि डीएसपी ट्रैफिक और डीपीओ कसूर जो है इस चीज़ का नोटिस लें, ताकि जो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो गप्पे शप्पे मारने पे साइडों पर जो बैठ के जो है वो मसरूफ होते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पर जो है वो देखने के लिए वो बिल्कुल भी यहाँ पर फील्ड में मुतहरक नजर नहीं आते। और दूसरी जानब अगर मेन शाहरात की बात की जाए तो वहाँ पर भी हैवी ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो इस वक्त जो है ट्रैफिक जो इंतजामिया है वो बिल्कुल भी वहां पर भी नजर नहीं आती, जिससे शहरी जो है अपनी कीमती जानें भी खो रहे हैं और हादसात में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। जी, खैरपुर में अमन अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए एसएसपी खैरपुर हसन सरदार नियाजी की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िला भर के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में एसएसपी ने वाज़ेह हिदायत जारी की कि अमन हर सूरत बरकरार रखा जाए और नाकिस कारकर्दगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन मजीद तेज किए जाएंगे, जबकि थानों की कारकर्दगी का बाकायदा जायजा लेने का भी फैसला हुआ। पेट्रोलिंग को मजीद मौसर बनाने, मुखबरी निज़ाम को मजबूत करने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अहम अहकामात भी जारी किए गए हैं। एसएसपी खैरपुर हसन सरदार नियाजी ने खबरदार किया कि हर अफसर ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करे, बसूरत दीगर नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें ओहदों से हटा दिया जाएगा। कसूर में महंगाई ने गरीब आदमी के ख्वाब भी छीन लिए। ईंटों और रेत के आसमानों को छूते हुए रेटों की वजह से घर बनाना ख्वाब बनता जा रहा है। शहरी खुद साख्ता महंगाई से परेशान हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से मजीद अपडेट लेते हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से जहां अब ज़रूरतें एशिया खुर्दो नोश की कीमतें जो है ना वो महंगी हो चुकी हैं। अगर बात की जाए महंगाई की वजह से आम आदमी की जो जिंदगी मकान बनाने की जो एक ख्वाब है वो ख्वाब ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईंटों की कीमत अगर बात की जाए तो 24,000 रुपए जो है ना वो 1,000 जो ईंट जो है ना वो फराहम की जा रही है, जबकि रेत की बात की जाए तो 3 साल के सरकारी नरकनामा मुकर्रर ना होने की वजह से रेत के जो रेट है वो भी खुद साख्ता जो है ना वो होने की वजह से शहरियों को और मकान बनाने वाले जो आम इंसान है उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उससे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, कीमतों में इजाफा हो चुका है? जी, ईंट तो तकरीबन 24,000 से 26,000 रुपए तक जो 1000 ईंट मिल रही है। जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उसका तो सिर्फ ख्वाब ही बन चुका है। इसके अलावा रेत जो है, रेत इतने हाई रेट हो चुके हैं, सीमेंट के रेट हाई हो चुके हैं। गरीब आदमी है जो वो तो बना ही नहीं सकता मकान, मजदूर आदमी जो है वो कहाँ से बनाए। जी जैसे आपने बात सुनी है शहरी की, उसका ये कहना है कि गरीब आदमी के लिए मकान बनाना इस महंगाई के दौर में एक ख्वाब बनता जा रहा है। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं कि इनके जो है रेट मुकर्रर की जाए ताकि आम आदमी जो भी वो अपने ये मकान बनाने का ख्वाब जो है ना पूरा कर सके। जी, कमिश्नर सखर डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी ने खसरा और रुबैला से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लेने के लिए खैरपुर और सखर के मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लेडी वेलिंगटन हस्पताल खैरपुर वैक्सीनेशन के अमले का मुआयना किया, जहां 350 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। इसी तरह IBA पब्लिक स्कूल सखर में भी 400 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन फराहम की जाएगी। कमिश्नर ने हस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि दखली रस्तों पर रहनुमाई अमला तैनात किया जाए ताकि वालिदैन और बच्चों को सहूलत और बर वक्त रहनुमाई मिल सके। उन्होंने DHO सखर को मुहिम की सख्त निगरानी करने और रोजाना की रिपोर्ट्स लाजमी तौर पर जमा कराने की हिदायत की। खसरा रुबैला से बचाव की ये कौमी वैक्सीनेशन मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी।
आरिफ वाला में सैलाब मुतासरीन ने हुकूमती इमदाद को नाकाफी करार दिया है। मुतासरीन का कहना है कि लाखों के नुकसान के मुकाबले में मदद के चंद हजार रुपए मजाक के मुतरादिफ हैं। सर्दी की आमद के साथ ही तबाहाल घरों के मकीन दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। आरिफ वाला से आमिर तूर की ये रिपोर्ट देखिए। आरिफ वाला में सैलाब से मुतासरा खानदान हुकूमत पंजाब की इमदादी पॉलिसी पर नाखुश हैं। मुतासरीन के मुताबिक सैलाब ने उनके घरों, फसलों और रोजगार के ज़राए को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया, लेकिन हुकूमत की जानब से मिलने वाली रकम नुकसान के मुकाबले में ऊँट के मुँह में ज़ीरा के बराबर है। 7 एकड़ रकबा है मेरा, मैं उनदे विच जोना मक्की पट्ठे बीजे सरवा करके गए, उन्हें कहते इमदाद हुण 5000 का मैसेज आया है, मैं वो नहीं लिया, 5000 तो इनकार कर देता। मुतासरीन का कहना है 5 से 10 हज़ार रुपए की इमदादी रकम से टूटे मकानात की मरम्मत तो दूर की बात, बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं की जा सकती। साडा रकबा है जी 14 कनाल 13 मरले ते जोना सी बीजा हुआ सी सारा ही लुट गया जी, ते सानू गवर्नमेंट ने इमदाद सिर्फ 5000 रुपए दी है। साढ़े 2 मकान सी ते एक वाशरूम है, 4 दीवारी बिल्कुल मुकम्मल, जरा ना साडा घर तमाम ही लुट गया। कठिन हालात से 2-4 सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि उनके असल नुकसान का जायज़ा लेकर इमदादी पैकेज में वाज़ेह इजाफा किया जाए, ताकि वो सख्त तरीन हालात से निकल कर दोबारा मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। दादू के नवाही गांव पेचोहू में ऑल सिंध वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबे के मुख्तलिफ अजला की टीमों ने भरपूर शिरकत की। फाइनल मुकाबला दादू की 2 टीमों के दरमियान हुआ, जहां मस्त कहर शाह की टीम ने सख्त मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। फतेह टीम और रनर अप टीम को कैश इनामात और ट्रॉफियां भी दी गईं, जिसमें लाड़काना, हैदराबाद, नौशहरा फिरोज, जामशोरो, दादू समेत सिंध के 8 अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला दादू की 2 टीमों मस्त कहर शाह और नूर मोहम्मद बुखारी के दरमियान हुआ। सख्त और सनसनीखेज मुकाबले के बाद मस्त कहर शाह की टीम फाइनल जीतकर चैंपियन करार पाई। तकरीब तकसीम इनामात में ऑर्गेनाइजर शहजाद और रियाज पेचोहू ने विनर टीम के कप्तान को 20,000 रुपये और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 10,000 रुपये ट्रॉफी से नवाजा। विहाड़ी में हुकूमत पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों में ट्रैक्टरों की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में 329 खुशनसीब किसानों को ट्रैक्टर फराहम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी MPA मियां साकिब खुर्शीद थे, जिन्होंने कुरानंदाजी में कामयाब होने वाले किसानों को ट्रैक्टरों की चाबियां तकसीम की। इस मौके पर मियां साकिब खुर्शीद ने कहा कि हुकूमत पंजाब का मकसद जदीद ज़रई मशीनरी की फराहमी के जरिए ज़राअत को मजबूत और मुस्तहकम करना है। उन्होंने बताया कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से हर कामयाब किसान को 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। भावलपुर में पहली मर्तबा गर्ल्स के दरमियान बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली लड़कियां पुरजोश हैं। इनका कहना था कि इनके लिए ये मुकाबला एक नई जहद और दिलचस्प तजर्बा है, जिसके जरिए जिस्म को ज्यादा चुस्त और दिमाग को तेज किया जा सकता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ भावलपुर जावेद चौधरी से। जी जावेद, बताइएगा। जी, बहावलपुर जैसे दूर अफ्तादा शहर में बच्चियों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कम से कम मैसर आती हैं, लेकिन बहावलपुर जो कॉलेज इंतजामिया है, टेक्निकल कॉलेज इंतजामिया, उनकी तरफ से बास्केटबॉल का एक चैंपियनशिप मुनक्कद की जा रही है, जिसमें हमारी बच्चियां भी भरपूर हिस्सा ले रही हैं। बच्चियों से जानते हैं कि उनको इससे क्या क्या फायदा हासिल होंगे। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हमें गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज बहावलपुर हमें मौका दे रहा है बास्केटबॉल खेलने का, हमारी फिजिकल हेल्थ को सही करने का। जो लड़कियां घरों में बैठी हुई मोबाइलों पे खेल रही होती हैं, बैठी होती हैं, इनसे अच्छा हम फिजिकल खेलें तो इससे हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा सही रहती है। तो जो बैठे हुए हैं घरों में फोन यूज़ कर रहे हैं, इनसे अच्छा बाहर आके अपनी फिजिकल गेम्स खेलें। जी, जैसे बेटी ने बताया कि अगर फिजिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लें तो उससे ना सिर्फ वो अपने आप को जिस्मानी तौर पर फिट रखने में उनको मदद मिलती है, बल्कि दुनिया में अपने आप को मनवाने के मौके भी मुयस्सर आते हैं। यकीनी तौर पर इस लीग से बहुत सारी बच्चियों को आगे बढ़ने के मौके मुयस्सर आएंगे। जी
दूसरी जानिब पाकपतन में पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से खवातीन चोर गैंग की सरगना आसिया बीबी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा के कब्जे से 35 लाख रुपए मालियत का सामान भी बरामद कर लिया गया। DPO का कहना है कि वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। DPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्रीन टाउन के रिहायशी मारूफ ताजिर शेख मुनीर के घर से खवातीन गैंग ने 38 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी किया। पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से सरगना को सुराग लगाया और इसे गिरफ्तार करके 35 लाख रुपए मालियत का माल बरामद कर लिया। DPO ने मीडिया के सामने बरामद किया गया सामान मालकान के हवाले किया। DPO जावेद चद्दर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। सादिकाबाद दुनिया का तीसरा और पाकिस्तान का वो पहला शहर है जिसकी हर साल धूमधाम से सालगिरह मनाई जाती है। 90 साल मुकम्मल होने पर मेगा इवेंट का इनेकाद किया गया, जहां रंगारंग प्रोग्रामों ने शहर में जश्न का समा बना दिया। मजीद जानते हैं शफीक अहमद की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद की बुनियाद 18 नवंबर 1935 को नवाब सर मोहम्मद सादिक खान अब्बासी ने रखी। इस शहर बेमिसाल की हर साल सालगिरह मनाई जाती है। 90 साल मुकम्मल होने पर रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्दों के साथ साथ खवातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में कल्चरल स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। रिवायती मलबूसात, मकामी हुनर और तहजीबी झलकियाँ इस पूरे मेले का दिलकश हिस्सा रही। ये एक बहुत बड़ी रंगों भरी शाम नजर आ रही है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं खाने पीने के, लोग वहाँ खाने पीने एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है। सालगिरह के मेगा इवेंट में खवातीन की दिलचस्पी दीदनी थी, जबकि बच्चे झूलों, खिलौनों और मुख्तलिफ सरगर्मियों में मगन नजर आए। सादिकाबाद की सालगिरह पे सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे खुशी का समा है। ईद के बाद ये बहुत बड़ा त्योहार था जहाँ पे हम सब ने मिलकर खुशी मनाई है। ये एक फैमिली पार्क है जहाँ पे छोटे बड़े फैमिली सब अपने साथ आए हुए हैं। खुशियों और मस्तियों से भरा ये माहौल शहर की सरगर्मियों में नई रूह डाल रहा था। म्यूजिकल नाइट ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। लोक फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। सालगिरह का मुनफरिद फेस्टिवल ये एक ऐसा त्योहार बन चुका है जो न सिर्फ माजी की झलक दिखाता है बल्कि आने वाले कल की उम्मीदों को भी रोशन करता है। कैमरा टीम के साथ शफीक अहमद, 5 न्यूज, सादिकाबाद। हाफिजाबाद के नवाही इलाके में पैरा फोर्स और जिला इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान की जमीन वागुजार करा ली। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक और पैरा फोर्स इंचार्ज मोहम्मद जुनेद गोंदल की निगरानी में 3 कनाल 13 मरला जमीन कब्जा माफिया से खाली कराई गई, जो अरसा दराज से बासर अफराद के कब्जे में थी। अहले इलाका ने हुकूमती कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ इकदाम से अवाम का एतमाद बहाल हो रहा है। इंतजामी अफसरान का कहना था कि नाजायज कब्जे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और आइंदा भी कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खानेवाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एहसन इकदाम। ज़िला काउंसिल में पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, डिप्टी डायरेक्टर खानेवाल ने माजूर अफराद में 15 मैनुअल, 9 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर और 10 ट्राई साइकिल और 1 स्टिक भी तकसीम की। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ ने 5 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हुकूमत पंजाब का एहसन इकदाम है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, बताइएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा का एक और एहसन इकदाम खानेवाल जिला कौंसल में आज माजूर अफराद में इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर तकसीम की है। तो हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ। तरफ रहेगा वज़ीर पंजाब की जाने से आज आपने व्हील तकसीम की है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो वज़ीर आला पंजाब है, उनके विजन के मुताबिक 100 से ज़्यादा प्रोग्राम लॉन्च किए गए जो कि हर मकतब फ़िक्र के लिए, जैसे कि दी रानी प्रोग्राम सोशल वेलफेयर की तरह, हिम्मत कार्ड सोशल वेलफेयर अदारे की में, और आज का जो ये माजूर लोगों का है ये व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर और राइस, इतने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो कि एक माशरे में वो भी लोग अपनी ज़िंदगी आम शहरी की तरह गुजार सकें। जो पहले माजूर थे, मुख्त प्रॉब्लम थे, वो इंशाल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। जो प्रोग्राम दिए गए हैं ये है असल रियासत मदीना का नक्शा जो
कि इससे पहले जो झूठे नारे लगाए जाते थे, इसे कहते हैं रियासत में कि इंसाफ की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पे, कोई पार्टी के इसमें सरकारी कोई सियासतदान की सिफारिश नहीं चलती। जो मेरिट पे हकदार वो पहले, उसके बाद दूसरा, तीसरा। और इंशाल्लाह ये तरक्की का अमल प्रोग्राम ये जारी है, सारी रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये आज इतने के हैं, अगले में 1 माह बाद और आ जाएंगे और आ जाएंगे, जब तक खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में एक माजूर से भी आखिरी हो उसको भी ये सहूलत दी जाएगी। इसे इख्तलाफ, मेरी जमात से इख्तलाफी पहलू रंग, उनको भी मेरिट की अगर बुनियाद में कुरानदाजी में नाम आया उनको भी मिला। जी, आपने बात में पार्लियामानी सेक्रेटरी राणा मुस्लिम का ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का ऐसा इक़दाम है और माजूर अफराद की ऐसी खिदमत करती रहेंगी। जी, घोटकी में सूफी बुजुर्ग फकीर अनवर हुजूर शाह के सालाना उर्स की तकरीबात जहांपुर शरीफ में दूसरे रोज भी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ जारी हैं। जिला भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। उर्स के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद हैं। दूसरी जानिब उर्स की तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं, पंजाब के तलबा जो इस्तात नहीं रखते, माली इस्तात नहीं रखते, आज पंजाब ने उन सब की पढ़ाई को अपने जिम्मे ले लिया है। माशाल्लाह 80,000 बच्चा, वो लायक बच्चा, ब्राइट बच्चा जो माली इस्तात नहीं रखता लेकिन वो अपने मेहनत में, अपने इंटेलेक्ट में किसी से कम नहीं है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह फ्री एजुकेशन मिल रही है। उसकी पूरी की पूरी फीस जो है वो पंजाब हुकूमत ने अपने जिम्मे ले ली है। माशाल्लाह 80,000 बच्चा कि अगर उसको वो स्कॉलरशिप, होनहार स्कॉलरशिप ना मिलता तो शायद वो बच्चा पढ़ ही ना सकता। ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज 50,000 सरकारी स्कूल हैं पंजाब के अंदर जहां पे मिसिंग फैसिलिटीज थी, चाहे वो बाथरूम्स हों, टॉयलेट्स हों, दीवार हो, मिसिंग क्लासरूम्स हों। आपने देखा है कि कई जगह बहुत स्ट्रेंथ है बच्चों की, क्लासरूम्स की कमी है तो लोग बच्चे कभी दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं या बरामदों में जमीन पे बैठे होते हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों तक पंजाब का कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जहां पे लोगों को क्लासरूम से बाहर बैठ के पढ़ना पड़े। 50,000 नए क्लासरूम्स बन रहे हैं, 50,000। और फर्नीचर कभी पूरा नहीं होता या टूटा होता है फर्नीचर तो लोग, बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़े होते हैं। नया फर्नीचर माशाल्लाह तमाम स्कूल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां पे टीचर्स नहीं थे वहां पे टीचर्स, ट्रेन टीचर्स हम लेके आ रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हम लेके आ रहे हैं। और गरीब लोगों के बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल आ जाते थे, स्कूल में बेहोश हो जाते हैं, तो अब हमने स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें माशाल्लाह इस वक्त कई लाख बच्चों को फ्री दूध का पैकेट रोज मिल रहा है माशाल्लाह। और उसके अलावा ना सिर्फ दूध मिल रहा है बल्कि अब बच्चों को हमने स्कूल में खाना भी दोपहर का देना शुरू कर दिए। और उसकी वजह से जो एनरोलमेंट बढ़ी है, जो आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जो है वो स्कूल में आए हैं। अफसोस भी होता है कि एक दूध के पैकेट की वजह से या एक खाने की प्लेट की वजह से बच्चे जो है वो स्कूल में आने लगे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ ये कि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, जो एक स्टंटेड ग्रोथ की तरफ जा रहे थे वो ग़िज़ाई ज़रूरियात उनकी पूरी हो रही हैं, उनकी कमी जो है वो दूर हो रही है, बल्कि इस तरह से स्कूल में जो बच्चे स्कूलों से बाहर थे अब वो स्कूल में आ रहे हैं तो स्कूल में तादाद जो है वो बच्चों की बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देख लें, मेजॉरिटी की मैं बात करूंगी, वो लगता ही नहीं है कि सरकारी स्कूल है। इतने खूबसूरत वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल बनने जा रहे हैं माशाल्लाह। बच्चों को आईटी की तालीम दी जा रही है, साइंस की उनकी लैब्स अपग्रेड हो रही हैं, उनकी कंप्यूटर लैब्स अपग्रेड हो रही हैं, उनकी साइंस लैब्स अपग्रेड हो रही है। और हर महीने एक थीम दी जाती है पंजाब के सरकारी स्कूलों पे जिस पे बच्चों को नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और उस पे वो अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं। जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 सालों में उससे बेहतर सहूलतें जो है वो सरकारी स्कूलों में होंगी। और इसी तरह अब आप देख रहे हैं ये जो वक्त होता है, इस साल के जो अक्टूबर या नवंबर का वक्त होता है उसमें स्मॉग ने पिछले कई सालों से स्मॉग का डेरा होता है, फिजा जो है आलूदा होती है। तो अब आप देखिए शायद कई साल के बाद
पंजाब में पहली बार, लाहौर में, पंजाब में पहली बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में जहां स्मॉग ने, थिक स्मॉग ने हमारे आसमान को, होराइजन को कवर किया होता है, अस्पतालों में बीमार लोगों की, सांस के अमराज में मुब्तला लोगों की, बीमार बच्चों की, आंखों के अमराज में जो बच्चों की लाइनें लगी होती हैं, अस्पताल में भरमार होती है पेशेंट्स की, मार्केट्स को शट डाउन करना पड़ता है, स्कूल्स को बंद करना पड़ता है, बिजनेसेस को उनकी टाइमिंग जो है वो रेगुलेट करनी पड़ती है, 6 बजे 7 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ता है। आज साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में स्मॉग में 60-70% जो है वो बेहतरी आई है। अब जो फसलों की बाकियात है उनको जलाने की इजाजत नहीं है, वो स्मॉग बनती है। जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उनको सड़क पे दौड़ने की इजाजत नहीं है, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं। अभी लाहौर से शुरू किया, बाकी शहरों में भी उसको लेके जा रहे हैं। और एयर क्वालिटी को जो मॉनिटर किया जा रहा है, स्मॉग गन्स आपने देखी होंगी, जिसको लोगों ने कहा इसका कोई फायदा नहीं। अगर स्मॉग गन्स का कोई फायदा नहीं है तो स्मॉग में किस चीज से बेहतरी आई है? वो 15 बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जिन पे स्मॉग गन्स लगी हुई हैं, वो जाके पानी का छिड़काव करती हैं और उस एरिया में जो है उस वक्त स्मॉग में बहुत बहुत डिफरेंस आता है, बहुत बेहतरी आती है। तो आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर, लाहौर में आपको वो जगह जगह स्मॉग गन स्कूलों के इर्द गिर्द, पब्लिक एरियाज के इर्द गिर्द आपको वो काम करती नजर आती है। मरियम औरंगजेब को मैं शाबाश देना चाहती हूँ जिसने दिन रात एक किया है। बिलाल जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये ग्रीन बसेस जो हैं जिस तरह उसने चला दी हैं, मैं उसको भी शाबाश देना चाहती हूँ। और बिलाल मेरी शिकायत दूर करो, जल्दी से बस स्टेशंस बनाओ ताकि लोगों को कोई साया मिले। अगर उन्होंने बस का इंतजार भी करना है तो उनको सड़क पे ना खड़ा होना पड़े। तुम्हारी मेहरबानी है, प्लीज इसको जल्दी करो। और ये जो जगह जगह अब बहुत बड़े प्रोग्राम्स आने लगे हैं, ये सब हम शुरू करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने बताया कि 1000 सड़कें, छोटी सड़कें जो हैं, इंटर विलेज रोड्स, वो बनने जा रही हैं। 6 महीने में उसको कंप्लीट करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। इसी तरह पंजाब के तमाम इजला के अंदर, तमाम शहरों के अंदर जहां जहां बारिश के बाद पानी खड़ा हो जाता है, जहां सीवेज ड्रेनेज लाइंस जो हैं वो या हैं ही नहीं या चौक हो चुकी है, थोड़े से या गलियों में पानी खड़ा रहता है, पंजाब में तकरीबन 100 बिलियन की लागत से हम वो तमाम जगहों पे नया ड्रेनेज और नया सीवेज डालने जा रहे हैं ताकि लोगों की गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे पानी जमा ना हो और लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसी तरह पोठवार रीजन में पानी की कमी है, पानी की लोगों को प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम पीने के साफ पानी को इंशाअल्लाह ताला विद इन दिस ईयर हम हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाएंगे। और सिर्फ पोठवार नहीं, साउथ पंजाब में भी और पंजाब के उन इलाकों में जहां पर पीने के पानी की को लोगों को दूर से सर पे उठा के लाना पड़ता है, तो रनिंग वाटर नहीं है, वहां पर इंशाअल्लाह ताला हम पीने का साफ पानी पूरे पंजाब में हर जगह लोगों की दहलीज तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह मेरे पास 24-25 हजार पंजाब के अंदर गांव है। इस साल इंशाअल्लाह ताला तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2500 के करीब हम गांव को मॉडल विलेजेस बनाने जा रहे हैं, जिसमें कोई सड़क कच्ची नहीं रहेगी, पीने का साफ पानी मुहैया होगा, बेहतरीन सेहत की सहूलियात होंगी, बेहतरीन जो है वो तालीम की सहूलियात होंगी और वो तमाम सहूलियात उन गांव में फराहम की जाएंगी जो शहर के लोगों को, अच्छे शहरों के लोगों को अवेलेबल होती। और इसी तरह आप ये देखते हैं कि ये जो काम जो एग्रीकल्चर में काम हो रहा है, अब जो तमाम एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है पंजाब का, पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट है और पंजाब का किसान बहुत मेहनत करता है। अब वीट सोइंग सीजन है तो माशाल्लाह जिस तरह जो किसान जो है वो वीट या गंदम उगा रहा है, आप ये देखो कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम पूरे पंजाब में ना, अब ट्रैक्टर्स तो हमने माशाल्लाह इस साल 10,000 और इस साल जो ये अब करंट फिस्कल ईयर है इसके अंदर हम 20,000 मजीद ट्रैक्टर्स लोगों को दे रहे हैं। किसानों को 30,000 से ज्यादा ट्रैक्टर लोगों को मिल रहा है किसानों को। इसके अलावा जो हाईटेक फार्म मशीनरी है वो भी हम जो है किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बेहतर पेस्टिसाइड, बेहतर बीज और बेहतर जो है वो फर्टिलाइजर हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसान कार्ड के थ्रू उनको पैसे दे रहे हैं ताकि
किसान को जो है अपनी ना सिर्फ ये कि मेहनत का मुआवजा पूरा मिले, बल्कि किसान को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला किसानों का भी पूरे तरीके से हम हाथ पकड़ेंगे। तो ये जो काम मैंने आपको गिनवाए, ये 10 साल में नहीं हुए, ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में हुए हैं। और उसकी वजह है कि काम मेहनत से होता है, काम नीयत से होता है, काम जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। और एक आपने सुना होगा कि अब पंजाब नया ऑर्डिनेंस लेके आया है कि आपकी जमीन पे अगर कब्जा हुआ है, लोगों की जमीनों पे, गरीब की जमीन पे, गरीब अमीर दोनों की जो असर रसूल रखता है, वो जिसके ऊपर उसका जोर चलता है उसकी जमीन पे, उसके घर पे, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है। अभी हम पिछले हफ्ते एक ऑर्डिनेंस लेके आए जिसके तहत 30 दिन के अंदर अंदर फैसला होगा इंशाल्लाह ताला। और अभी एक हफ्ते के अंदर सीएस कितने हम फैसले कर चुके हैं माशाल्लाह, तकरीबन, और सैकड़ों में वो नंबर है जिनका एक हफ्ते के अंदर अंदर फैसला हुआ है पूरे पंजाब में। सालों पुराना कब्जा था या दहाइयों पुराना कब्जा था, डीसी ऑफिस या एसी ऑफिस में बैठ के दोनों पार्टियों को सामने बिठाया और कब्जा छुड़ा दिया। ये पहले कब हुआ है पंजाब के अंदर? लोगों की नस्लें अदालतों में रुल जाती थी, उनके कब्जे नहीं छूटते थे। अब इंशाअल्लाह ताला अगर किसी की कोई शिकायत आती है कि उसकी जमीन पे या उसके घर पे या उसकी प्रॉपर्टी पे या उसकी दुकान पे कोई कब्जा है, तो इंशाअल्लाह ताला 30 दिन के अंदर अंदर फैसला होगा। और उसके अलावा जो आसान कारोबार स्कीम थी हमारी, आप जानते हो कि 85 बिलियन के कर्जे पंजाब के लोगों को मिले हैं ताकि वो अपने कारोबार को या नया कारोबार अपना शुरू कर सके या जो इनका एग्जिस्टिंग कारोबार है उसको वो बढ़ा सके। तकरीबन 1,17,000 नए कारोबार शुरू हुए और उनको 85 बिलियन के करीब उनको आसान कारोबार स्कीम के तहत उनको कब्जा मिला है। हर जगह दरख्त लग रहे हैं, हर जगह सफाई हो रही है। तकरीबन सुथरा पंजाब में 1.5 लाख अफराद को नौकरी मिली है और पूरे 1.5 लाख अफराद की ये फौज पूरा पंजाब साफ कर रही है। पंजाब का जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसको साफ कर रही है। तकरीबन 50 बिलियन की मशीनरी हमने खरीदी है। हर शहर में वासा बन रहा है, हर शहर में PHA बन रहा है जो आपके जो सीवेज ड्रेनेज के मसले हैं वो हल करेगा। PHA आपकी जो ब्यूटिफिकेशन है शहरों की वो करेगा। मेरा ये भी दिल है कि पंजाब के जितने छोटे शहर हैं या दूर अफ्तादा जो भी इलाके हैं उनको कभी एहसास ना हो कि हम शायद तरक्की से महरूम हैं। इसलिए पंजाब में अब अगर तरक्की होगी तो इंशाअल्लाह ताला यकसा होगी। और लॉ एंड ऑर्डर में अभी जैसे हनीफ अब्बासी साहब ने बात की, CCD ने माशाल्लाह जो काम किया है, 70% रिडक्शन है क्राइम में माशाल्लाह 4 महीने के अंदर अंदर। अब लोग बंदूक उठाते हुए डरते हैं, अब लोग कहीं चोरी करते हुए डरते हैं, हाथ जोड़ के तौबा तायब कर रहे हैं जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है कि हमें प्लीज हमें माफ कर दो, हमने चोरी से तौबा कर ली। हरम शरीफ में जाके वीडियोस आ रही, वो कहते हैं हम हरम शरीफ में यहाँ पर अल्लाह के घर में खड़े होकर वादा कर रहे हैं कि हम चोरी चकारी नहीं करेंगे। तो अगर पंजाब के अवाम जो है वो महफूज नहीं है तो फिर मरियम नवाज शरीफ को सोचना पड़ेगा। अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि आज जो लोग मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स नहीं भी हैं, उस दिन मैं एक ट्विटर पे वीडियो देख रही थी, एक खातून जो कि शायद हमारी नहीं है, वो हमारी मुखालिफ है, उसने ये बात कही, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने ये बात कही, मैं उनको जानती भी नहीं थी। मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि इनका ये हमारे पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब जारी था। उनका कहना था रावलपिंडी में दिन रात तरक्याती काम जारी हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है तो मुल्क तरक्की करता है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत करने पर यकीन रखती है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को मेगा मंसूबे दिए हैं। पंजाब में 1.5 साल में जो तरक्की हुई इसकी मिसाल नहीं मिलती। मरियम नवाज का कहना था मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को मेगा मंसूबे दिए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।